Yes, very good. Very good, Shushti. So what we have realized is that there will be shear stresses formed. Maximum and the neutral axis, just opposite of that case. And slowly, it will degrade to zero. Over here, it was zero. Just for a quick revision, see, I hope you remember this, that because there was a change in bending moment here, 9,000 here, 12,600, there was a difference in this normal forces over here. And because of that difference, there is an imbalance, and that imbalance is balanced by 800 Newton shear force. This is a shear force because it is acting parallel. और अगर 800 यहाँ exist करेगा, so I have told you that 800 will also exist. This इस 800 के कारण फिर क्या होगी, shear stresses generate होगी. और अगर shear stresses यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी. Right? So this was the distribution over here. And VQ by IB was the formula. And in the last lecture, in the final lecture, we have derived the expression for it. And tau max was 3V upon 2A, and for circle it was 4 upon 3 tau average. Okay. So average is V upon A as usual. So coming back to our discussion over here. So जनरली ये फॉर्मूला हम काफी यूज करते हैं, इसलिए याद होना चाहिए आपको 3V upon 2A maximum. And for circle, all right friends, so this is what we have studied in our previous classes, and last but not the least was the fourth chapter or whatever chapter it was. इसके बीच में हमने डिफ्लेक्शन भी पढ़ा था. डिफ्लेक्शन यहाँ पे काम नहीं आने वाला है. डिफ्लेक्शन वाज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ बीम्स. मतलब बीम्स में डिफ्लेक्शन होता है यूजुअली, सो इट वाज जस्ट डेडिकेटेड टू बीम्स. It's not a part of any chapter. So what is the fourth one? Torsion. So here there was a twisting, and we have realized that the shear stresses would be generated like this. Tau will be equal to 16T upon pi d cube. How to select the direction? Whatever is the direction of internal twisting moment, this is internal twisting moment. That would be the direction of the stresses. Stresses will generate this tau T over here. So these are shear stresses. So let's start now with the. I'll be solving approximately 3 examples with a different level of difficulty. So let's start with the first and the simplest one. Okay, so this is any shaft. Okay, and what I have done is, यहाँ पर मैंने twisting moment apply किया like this. Apart from it, I have applied one more loop. So what we have to do is, हमें ये point A
जो टॉप फाइबर पे है, और ये पॉइंट बी पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस आप जानते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेसेस एक्ट होगी, मतलब कौन कौन सी शेयर होगी, कौन कितनी शेयर होगी, टोटल शेयर एंड टोटल नॉर्मल, मतलब स्ट्रेस एलिमेंट बनाना है आपको। So you have to draw stress element over it. तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग, what we'll do is जहां पर भी आपसे पूछा जाए निकालने के लिए, जस्ट डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, मतलब उसको वहां से ब्रेक कर दीजिए, तो आपको इंटरनल फोर्सेस पता चलेंगे, और इंटरनल फोर्सेस पता चलेंगे तो स्ट्रेसेस पता चल जाएंगे आपको। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, वही जो हम अभी तक करते आए हैं। लाइक दैट। चलिए, नाउ आई नीड योर इंटरेक्शन। ठीक है, ध्यान से जवाब देते जाइएगा, क्योंकि मैं सब कुछ अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको बस मुझे ये बताना है कि यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस क्या क्या दिखेंगे आपको। चार हैं टोटल, चार में से कौन कौन से आपको लगते हैं। स्टार्ट आंसरिंग। ये वाले सेक्शन, येलो सेक्शन पे पूछ रहा हूँ। कौन? बहुत बढ़िया। प्रज्वल सेज दैट देयर विल बी अ टी ओवर हियर in the opposite direction just to balance this t, right? So this is like your external guy. एक काम करता हूं मैं, इंटरनल को रेड से बना देता हूं, so that would be very clear to you कि इंटरनल फोर्सेस है। Anything else apart from this? Okay, Urvi says there will be a bending. Very good. बेंडिंग में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमेशा एक तरीका करिएगा यूज, मैं आपको बताता हूँ। एंड नीलेश सेज देयर इज अ शेयर। ओके, वेरी गुड। सो चलिए मैं दोनों को एक एक करके एड्रेस करता हूँ। अगर हम इसे 2D में एनालाइज करने की कोशिश करें, सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ Vx like this, whatever is the distance we don't care about it. So यहाँ पर आप देखेंगे कि m will be equal to, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, px, और डायरेक्शन अपोजिट होगा इसका। These are internal forces, so very simple will tell us that this will be m and this will be, just to balance the bending created by this load and shear created. There will be shearing because of this load. अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट ऐसे कर्व सर्कल से नहीं दिखाना है आपको। आपको यहाँ पर जैसे टी दिखा रखा है आपने एरो से, वैसे ही यहाँ पर दिखाना है। तो आप अपना फिंगर्स, राइट हैंड का फिंगर्स कर्ल करिए, तो इट इज पॉइंटिंग आउट आउटवर्ड्स, राइट, ऐसे। तो यहाँ पर आपको टी दिखाना है, एम दिखाना है। And so T goes for Prajwal, M goes for Urvi, and V goes for shear for Nilesh. तो शेयर कहाँ होगा भैया हमारा? P ऊपर है ना, ये P शेयर ही है आपका, call it as shear। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। डबल एरो से मैं जस्ट मेक श्योर कर रहा हूँ कि इट्स अ मोमेंट, एंड सिंगल एरो इज अ फोर्स। सिमिलर अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर भी दिखेंगे, अपोजिट इंटरनल फोर्सेस, there's nothing great in it. So there will be T over here, there will be V over here, and there will be M over here. And let's say this is your point A, and this is point B. अब देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनालिसिस चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, इसको भी ये भी मान सकते हो,
इसको भी मान सकते हो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि सेक्शन एक ही है, काटा आपने यहीं से। सिंस यू आर कटिंग फ्रॉम हियर, ए और बी कैन नॉट बी सेट की भाई यहाँ होगा या वहां होगा, कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं, बट हाँ लोकेशन सेम होना चाहिए टॉप पर और बॉटम पर। चलिए अब पहले एक काम करते हैं, बी पे एनालिसिस कर लेते हैं। सो दिस इज योर बी। इसका मैं थोड़ा जूम व्यू बना लेता हूं यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है लाइक दैट। अब मैं यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखा रहा, इंटरनल फोर्सेस तो यहाँ आपने दिखा दी है। मैं यहाँ पर स्ट्रेसेस पूछूंगा अब आपसे, एक एक करके बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, अभी बी पे बात कर रहा हूँ। चलिए सो बी पर ड्यू टू टी क्या शेयर, क्या होगा, शेयर होगा या नहीं होगा? होगा, कैसे होगा? इसका मैं व्यू बना लेता हूँ यहाँ पर। बस आंसर मुझे आपसे ये चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ये डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। बता सकता है कोई स्टूडेंट मुझे, ये टाउ जो होगा वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? It would be great if all of you answer the question. Will it be downward or okay? Prajwal says it is downward. Okay, Hitesh says upward, no problem. Shushti says downward. Down. Nilesh says downward. Adesh also says downward. What about you, Urvi? Downward. Great. देखिए, let's understand this. देखिए, कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पर देखिए, आपका जो टॉर्शनल इंटरनल ट्विस्टिंग मोमेंट है वो बाहर की तरफ है। तो अगर मैं इसका व्यू यहाँ पे लेता हूं तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट ऐसा होगा बाहर की तरफ, तभी तो बाहर की तरफ एरो पॉइंट करेगा। और ऐसा ट्विस्टिंग मोमेंट होने के लिए मेरी शेयर स्ट्रेस कैसी होनी चाहिए? माय शेयर स्ट्रेसेस मस्ट बी लाइक दैट। लाइक दिस। एक काम करते हैं, ये एक एक करके देखते हैं, टी का एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो बी भी आ जाएगा उसमें और ए भी आ जाएगा। ये रहा ए। अगेन अगेन वी डोंट हैव टू डू द सेम थिंग। ए पर क्या होगी भाई डायरेक्शन? ए पर डायरेक्शन होगी सर लाइक दिस, लेफ्ट। So you can see that all these shear stresses are creating a twisting in this direction, anti-clockwise direction, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फोर्स बाहर की तरफ, इंटरनल ट्विस्टिंग बाहर की तरफ। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, पहले बी पे ड्रॉ कर लेते हैं। बी पर किधर दिखा आपको? सर बी पर दिखा हमें नीचे की तरफ। लेट्स से दिस इज tau 1। और यहाँ पर किधर दिखा आपको?
दिस आप फील ले सकते हो कि ये टाउ और ये टाउ एक तरह से इस तरह से मोमेंट जनरेट करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट, जो इट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एक्स एक्सिस. Okay, so far so good. Now let's take this guys over here and let's talk about the some other section. और इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, इसे कोई आगे ले लेते हैं क्योंकि ये इसको हम कंटिन्यू करके ऐड कर लेते हैं. चलिए भाई, अब बताएं ड्यू टू एम. दिस इज गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज फॉर यू. एम के कारण बताएं, पहले बी पर बताएं. नॉर्मल स्ट्रेसेस होगी या नहीं होगी? होगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, एक एक हिंट दूंगा मैं आपको. आप कभी भी बेंडिंग मोमेंट के लिए सॉल्व करें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, दो चीजें देखें जरूर. एक तो ये कि यहां पर आपका न्यूट्रल एक्सेस कौन सा है. कैन यू टेल मी व्हिच वन इज द न्यूट्रल एक्सेस, एक्स वाई और जेड? यस उर्वी, करेक्ट. तो अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सेस वो एक्सेस होती है जिसके अलोंग बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है. अरे देखो ना, ये न्यूट्रल एक्सिस थी आपकी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इस तरह से एक्ट हो रहा है, लाइक दिस. अब वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बट इट इज अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस. सो दिस z इज द न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग आप जानते हैं कि स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है. तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस तो जीरो हो जाएगी. और ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम y पर है, और y जब मैक्स होगा आपका, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगी. और नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगी. अब बात ये है कि टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा. जल्दी से टाइप कर दो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. व्हाट डू यू फील लाइक, टेंशन और कंप्रेशन? टेंशन. ओके, धवल सेज टेंशन. आफ्ताब, सृष्टि, उर्वी, आदेश, निलेश, सोनाली, ओके, भूषण, वेरी गुड. टेंशन होगा. ठीक है, तो जरा सा फील ले सकते हो आप ऐसे भी यहाँ पर कि अगर ये बेंडिंग क्रिएट करेगा तो दिस विल क्रिएट अ बेंडिंग लाइक दिस. तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा. दैट इज वन थिंग, वन वे ऑफ एनालिसिंग. ऐसा नहीं भी करना है तो आप यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट है, इस बेंडिंग मोमेंट को अप्लाई कर दो. अंदर की तरफ जा रहा है तो ये इसको इस तरह से बेंड करेगा. So minus plus. So here there will be tension. So let's draw sigma over. This is due to bending. I'll write B over here. Surely. Last but not the least will be our due to M, due to V. देखो V के कारण क्या होगा? B पर स्ट्रेसेस. V आपका shear फोर्स है और वो जनरेट हुआ है बेंडिंग मोमेंट में चेंज के कारण.
Don't you think that? कि अगर ये z एक्सिस है आपका, ठीक है, so there will be like stress distribution like this. No धवल, बिल्कुल भी नहीं. वो टाउ टू एवरेज हो जाएगा फिर आपका v बाय, यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पे बात कर रहे हैं, यू टू बी स्पेसिफिक. यहाँ 0 हो जाएगा farthest point. और B पॉइंट जो है हमारा यहाँ लोकेटेड है. दिस इज B एंड दिस इज A. तो यहाँ पर आपका एक टाउ टू और ऐड हो जाएगा और वो टाउ टू का वैल्यू होगा वो 3/2 इंटू V बाय 4/3 सर्कल है ना, V अपॉन 4V अपॉन 3. और B पर तो 0 है. इन सबका जो टाउ का, अगर आप, मैंने आपको बताया था, अगर ये टाउ डीए इंटीग्रेट करोगे तो ये V के बराबर आएगा. तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग नहीं होती है V के कारण, यूनिफॉर्मली शेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ताकि आप हर एक पॉइंट पे टाउ टू बोल सको. हर एक पॉइंट पे टाउ टू जो होगा, यहाँ टाउ होगा वो एवरेज होगा V बाय. और यहाँ पर एवरेज का काम नहीं है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू चाहिए. दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन you want. They are asking it B intentionally. So you have to be very specific in defining the stresses over there. Is this clear? Please let me know. Is this clear? Or any doubt you can ask me. Just think of it. Any other students also I'm asking. Yes. मैं बहुत पहले से ही क्लैरिटी रख रहा हूँ ये आपके साथ. नॉट अभी मैंने ये सब कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है. वी हैव बीन clearly understanding this whole thing. Okay, fine. यहाँ से देखो आप, मैं आपको ये चीजें समझाते हुए आ रहा हूँ. Day 1 from the chapter has been started. We have looked into this, so that is what is the important thing. और ये लिखा भी था मैंने, देखिए कि यहाँ पे टाउ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको भी आ जाएगा. So यहाँ पर स्पेसिफिकली वो इस पॉइंट की बात कर रहा है. So you cannot write it as an average or anything else. Okay, चलिए. So having said that, let us draw stress element over here. अब देखिए stress element कैसे बनाऊंगा. This is now your complete. अब स्ट्रेस एलिमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है. क्यूब, यहाँ से क्यूबॉइड निकाल लीजिए बाहर. एक मिनट रुक जाए, ये एक्सेस हटा देता हूँ. इसे हटा, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ. सिर्फ स्ट्रेसेस दिखें और कुछ ना दिखे. मच बेटर. ये स्ट्रेस एलिमेंट हमने बाहर ले लिया है. So what will be it? What will it look like? Like this. This is your T1 plus T2. और आप जानते हैं कि इसका अपोजिट यहाँ आएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2. ये अकेले रह नहीं सकता, अपोजिट आएगा. इट इज क्रिएटिंग अ रोटेशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ये हो गई प्योर शेयर की स्टेट. अब गेट ये पूछ सकता है आपसे
कि बताओ भाई पॉइंट बी पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है। एक्सीलेंट क्वेश्चन बन सकता है ये गेट का, अभी तक पूछा नहीं है ऐसा कुछ। इससे थोड़ा मिलता जुलता पूछा है उन लोगों ने, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यही चीज पूछी है, मिलता जुलता पूछे हैं। प्योर शेयर इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट बी। व्हाट अबाउट ए? ए पर आप इस तरह से एक स्लाइस और काट सकते हैं। मतलब ये समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे टाउ 1 देखा अभी हमने, बस एक फेस पे भी पता चल जाती ना स्ट्रेसेस, तो दूसरे फेस सारे फेसेस पे पता चल जाती। ये खूबसूरती है स्ट्रेसेस की, क्योंकि इक्विलिब्रियम है भी आपके पास, ये बॉडी मूव नहीं कर रही, एक्सेलरेट नहीं कर रही, रेस्ट पर। अब ये उसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा सा शुरुआत में डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, बट लेटर ऑन ही एक्सेप्ट्स इट, ही और शी एक्सेप्ट्स इट। अब इसको मैं ऐसे से ऐसा बिठा रहा हूँ हमारे व्यू में। So this is your A and this is your B. This is a concept. इसको भी चाहो तो ऐसे बना लो। और you need to write, you have to write what is tau 1 and tau 2. Let's define tau 1. Tau 1 क्या होगा? Tau 1 the shear due to torsion. So here only you should write tau 1 is equals to 16t upon pi d cube. Tau 1 हो गया आपका। फिर उसके बाद सिग्मा आया था, सिग्मा बी। अच्छा ये चीज भी है कि यहाँ पर जो होगा, वो यहाँ पर भी होगा नथिंग, क्योंकि आउटर दोनों पॉइंट
there was some internet connection issue. I'm joining back. Yeah. Chat box. See, my Wi-Fi has, I mean, उसमें internet का कुछ issue. I'm just using my mobile hotspot. So for safety reasons, I'm using of the video so that the data consumption would be less. Otherwise, maybe वैसे तो आइडिया उठा लेता डेटा नहीं है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा तो आई ओपन. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मेरा वॉइस क्लियर है? इज माय वॉइस क्लियर एंड स्क्रीन इज विजिबल? एवरीथिंग इज फाइन? जस्ट लेट मी नो. ओके चलिए. सो बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे हम लोग. बेंडिंग स्ट्रेसेस है सिग्मा my upon I. What is m? M is m. What is y? Toughest fiber, radius or d by 2. What is I? Pi by 64, d की power 4. So you will have over here 32 m upon pi d. So this is your sigma b. And tau 2 I have already written 4v upon 3. So this guy will be nothing but 16t upon pi d cube plus plus 4v upon 3a. And this guy will be tau 1 16t upon pi d cube and this guy will be like 32m upon pi d. नेक्स्ट टास्क ये होता है कि आप इसका मोहर सर्कल बना लें. You know that how to draw Mohr circle for this and then calculate the principal stresses. So that is one way of realizing कि कौन सा point ज़्यादा critical है. All right. So this is the example one I have solved for you guys, just to illustrate the application of combined loading. Now the picture would be more clear for you. Second example which I am going to introduce is थोड़ा सा इसको 3D में ले चलते हैं. तो एल्बो 90 डिग्री पर है. Fixed over here. This is a fixed support. So this is fixed over here. And there is an external load P applied like this. इसे मैं अगर थोड़ा सा सिंपल करके दिखाऊं तो ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो सकता है आपको लाइक दिस. Again, let us take the same point, any one point. Let's this time. ये ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. और you call it as a B, whatever आप जो कहना चाहें.
So let's start the question solving. The process would be same. What we have to do is हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना होगा. This is going to be our part 1, which is fixed over here. और एक और पार्ट ये है it's a bit difficult to draw. Or rather I'll do it like this. Much better to visualize also. चलिए. So now again balls on your court. So you have to tell me कि यहाँ पर अब internal forces क्या क्या दिखेंगे आपको this side, so that I can extrapolate it to this side. Of course, this is our cross section. बताए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको येलो वाले सेक्शन पर. चलो, Urvi says the easiest one, HL. There will be just opposite P over here. Correct, absolutely correct, no doubt in it. Apart from it, anything you can visualize? Moment भी होगा इसका. Moment भी होगा इसका. And अगर आप देखें तो ये इस तरह से एक मोमेंट जनरेट करेगा लाइक दिस. इस तरह से मोमेंट जनरेट करेगा. वीडियो दिख रहा है ना आप लोगों को मेरा? आई होप यू कैन सी दिस. ओके, यस. तो ओके फाइन. तो इस तरह से ये मोमेंट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, व्हिच वाज आवर y एक्सिस. दैट्स इट. इसको देखने का तरीका और है एक और. देखो मैं बताता हूँ आपको. देयर इज वन मोर वे ऑफ लुकिंग इनटू दिस प्रॉब्लम. आप क्या कर सकते हैं, इस लोड को पे एक P और P इधर अप्लाई करें. इसको 3D से 2D बना लें. तो ऐसे P अप्लाई करोगे, लोड शिफ्टिंग कर रहा हूं बेसिकली. ये ज्यादा तरीका अच्छा लगता है मुझे दोनों ही तरीके अच्छे हैं. ये आपका एक्चुअल में इसमें थोड़ा दिमाग चलता है, इसमें इतना चलाने की जरूरत नहीं. बट आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स. तो मैंने यहाँ पे लोड ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया. अब अगर आप ये वाले P और ये वाले P को देखें, सो व्हाट यू कैन टेल इज I'm gonna replace this guys with a moment. Obviously बात है, अगर अपनी फिंगर्स कर्ल करोगे आप ऊपर की तरफ जाएगी. इस आर्म को हटा दो, इसको भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, बचेगा सिर्फ ये. और एक और आपका be like this. So this and this are the same problem. और अब आप यहाँ कट लगाओगे अगर,
तो ये अब 2D का प्रॉब्लम बन चुका है आपका, बिना दिमाग लगाने वाला। यहाँ P है, यहाँ M है, तो यहाँ M होगा, और यहाँ सॉरी आई यूज रेड कलर एज आई सेड, यहाँ M होगा और यहाँ P होगा, तो यहाँ पर भी P होगा और यहाँ पर M होगा। So this is another way of visualizing the same thing by load shifting. Nothing, no problem with this. तो आप यहाँ पर देखोगे तो वही आएगा, ये P इधर आ गया, just a matter of visualization. You have to stretch your imagination a bit. Okay, so after doing all this long story, let us come back to our objective of calculating stresses at B. Now this will be your, this axis will be yours so let me gonna ask you this question X, this is as usual Y, and this is as usual Z. At yellow, M should be downward. Oh yes, I'm sorry for that. Correct. Absolutely correct. Yes. देखिए यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। बट सर कॉन्सेप्चुअली कैसे बताओगे? तो भाई ये मोमेंट हमने क्या गलती करी, ये मोमेंट जो यहाँ पर जनरेट कर रहा है वो ऊपर की तरफ कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा ना, यहाँ पर इंटरनल फोर्स तो अपोज करेगा ना इसको। So of course this would be like this and this would be like this. Thank you Prajwal. Very good. I hope this is clear to you. इस P को अगर आप देखोगे इस पॉइंट पर, तो मोमेंट जो जनरेट करेगा वो ऊपर की तरफ करेगा। So we have to oppose it, right? हम हमेशा अपोज करते हैं, तो M नीचे की तरफ आएगा, तो वहां पर ऊपर की तरफ आएगा, and that is what is depicted over here also. नीचे ऊपर. Let me correct this. Very good. देख लीजिए एक बार आराम से, नो डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, हमें बी पे निकालना है स्ट्रेसेस। तो यार बी पे सबसे सिंपल तो एक दिख ही रहा है आपको, इसको वापस से ले लेते हैं एक बार, और बाकी सब हटा देता हूं मैं, ये एक्सेस फ्लेक्सेस सब। तो स्ट्रेसेस दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ जी बोलिए। बी पर एक तो नॉर्मल स्ट्रेस दिखेगा आपको सिग्मा पी के कारण, और चूंकि ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, you can assume that this P is equals to sigma upon A. Hey, sorry, sigma equal to P upon A. So let's say this is a sigma axial लोडिंग के कारण जो है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर बता सकते हो आप? न्यूट्रल एक्सिस बता सकता है कोई बच्चा, एक्स वाई जेड कौन सी न्यूट्रल एक्सिस होगी? Yes, Rahul, correct. Y will be the neutral axis, of course. Correct. Very good, very good. So Y हमारा neutral axis होगा यहाँ पर। तो this is the neutral axis, और ये neutral axis से farthest है, तो यहाँ पर definitely bending होगी। अब आपको बस इतना बता दो यार, ये टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा।
टेंशन होगा, वेरी गुड। टेंशन होगा, करेक्ट। अब बेंड करके देख लो इसको, इसको ऐसे बेंड करोगे तो ये वाला ऐसा जाएगा पार्ट आपका, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर ये स्ट्रेच होगा बी बाहर की तरफ है, देयर विल बी टेंशन ओवर हियर प्लस सिग्मा टी, दैट्स इट। तो आंसर है यहाँ पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी, सिग्मा बी विल बी अगेन 32 m by pi d क्यूब, फारदेस्ट पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं है। So it's a uniaxial stress system, uniaxial state of stress. That's what we call it. Okay, so this was a second example. Third example मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा. Just try. I'll give you 5-10 minutes to visualize, क्योंकि बिना आपके अटेम्प्ट किए मजा नहीं आएगा. एक्चुअली मैं वैसे ही बेंड हो रहा है यहाँ पर. हाँ, ठीक है. पिछली बार लोडिंग आपका कैसा था, पिछली बार आपका लोडिंग ऐसा था. इस बार इसे हटा के ऐसे लगा. Focus on this B, and this distances are, let's say, exam में given है, let's say C, A, B. तो इसको मैं अगर थोड़ा सिंपल मॉडल बना के दिखाऊं आपको, so this would be something like this. And this is where you have to determine the internal forces. चलिए, start attempting this problem. I'll be back in 5 minutes. In the meantime,
Okay. So Rahul has the answer now. Sorry, anyone else like to answer? स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट बी बता दीजिए मुझे बस. स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी. वेरी गुड राहुल. ओके, सृष्टि सेज प्योर शेयर. ओके, नीलेश आल्सो सेज प्योर शेयर. राहुल आल्सो से प्योर शेयर. गुड. प्रज्वल सेज प्योर शेयर. शेयर शेयर नहीं, प्योर शेयर कहिए. यहाँ तो फिर शेयर के साथ एक्सेल, बाय एक्सेल, यूनी एक्सेल कहिए. ओके गुड. मतलब आई, मुझे समझ में आया कि यू गाइस हैव. ओके ऋतुजा, वेरी गुड. यस यस यस. चलिए लेट्स डू इट क्विकली. आई विल डू इट वेरी क्विकली नाउ. तो यहाँ पर मैं इंक्लूड, ऐड और सबट्रैक्ट कर देता हूँ. पी एंड पी, और जल्दी से इसे कॉपी करके आई कैन रिप्लेस दिस पी. But since this is the axial, I'll call it as T. इसको हटाओ और एक सिंगल डंडी लगाओ. Like that. बस अब क्या है, अब इसे स्ट्रेट कर लो. ये P, ये T. ना मैं एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. फास्ट कैसे, अलग एक स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको एनालाइज करोगे. अब यहाँ पर आप बना दीजिए P नीचे आएगा और T इधर आएगा. अच्छा, और ये रहा आपका 3D डायग्राम. बस ये 3D में बना लिया जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस. और एक चीज और है भाई, यहाँ पर जो मिस किए हैं, स्पी के कारण बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, उसे बनाना ना भूलेंगे हम. ठीक है, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूं मैं. अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा. इसको ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ. तो यहाँ पर टी आएगा अपोज में, पी आएगा ऊपर, और इस पी के कारण एक बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होगा. ठीक है, सो दैट विल बी लाइक दिस. इसको अपोज करने के लिए ऐसा आएगा. दिस वुड बी बाहर की तरफ, लाइक दिस. तो यहां पर जाएगा वो अंदर. like this. So need to apply this. अब बी पे पूछते हैं.
So let's draw it finally. इसे हटा देते हैं, स्ट्रेसेस को हटा देते हैं. तो अगर आप देखेंगे टी के कारण पृष्ठिक मोमेंट ऐसा है, तो एक टाउ वन आएगा यहाँ पर. और टी का काम खत्म. पी के कारण भी शियर स्ट्रेसेस आएंगी, टी टो टू. एम के कारण यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस है. दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. So your tau 1 will be equal to 16t upon pi d cube, and tau 2 will be equal to 4v upon 3. So this is how you can get questions of combined loading. So it's just a pure work of imagination. After which you have to understand internal forces with your imagination. Once you come to know about the internal forces, then whole picture is about your कितना आपने अच्छे से अपना सब्जेक्ट को समझा है ना. दैट टू बेंडिंग एंड टॉर्शन. सो आई थिंक seriously, if I tell you, SOM is relatively a very easy subject. I'm telling you this. Okay. SOM easy है as comparison. अब easy or difficult क्या है as comparison to like fluid mechanics. Because in fluid mechanics and in SOM there is one basic difference कि fluid flows, right? तो वहां पर continuous deformation होता है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन होके रुक जाता है. तो चूंकि यहाँ पर डिफॉर्मेशन होके रुक जाता है, तो थिंग्स आर रिलेटिवली सिंपलर. वहां पर डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है. दैट्स व्हाई द थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट ओवर हियर. ओके, पार्टिकल्स आर नॉट दैट कॉम्पैक्ट. हियर पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट. So this is like this subject is like the most scoring subject you can ever think of. अगर आपका सॉम अच्छा है तो मैकेनिकल वालों से मैं एक ही बात कहूंगा कि आप एमडी मैनेज कर सकते हो बड़ी आसानी से. एमडी छोड़ना मत. एमडी में पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ द स्कीम राइट नाउ. अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है. बट आप लोग चाहें तो मशीन डिजाइन गेट के लिए बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लाते हैं गेट में, श्योर शॉर्ट. मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा वैसा का वैसा ही बैठता है. मैं कुछ दिखा रहा था. स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैंने बनाई थी यहाँ पर. ये चलिए इस तरह की एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस उठा लेते हैं, इसको समझते हैं. So this is from example. तो अगर इस तरह की लोडिंग दी हुई है कि शियर स्ट्रेसेस भी हैं और बेंडिंग के कारण नॉर्मल स्ट्रेसेस भी हैं, और हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे भाई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? सिग्मा 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 होल स्क्वायर. I'm not very good with the formula. Yes, till now I was correct. ठीक है. तो let's solve for sigma 1 normal stresses, principal normal stresses 32 m upon pi d cube. तो 32 चलो लिख लो एक पूरा, ये 2 लिख दिया है यहाँ पर मैं, ठीक है. प्लस 0 प्लस माइनस रूट ऑफ
32m अपॉन पाई डी क्यूब, ये वाला 0 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 16t अपॉन पाई डी क्यूब। क्या होगा आपने, टाइम पास है थोड़ा सा, बट ठीक है कर लो एक बार। सिग्मा 1, 2 इक्वल टू 16m अपॉन पाई डी क्यूब प्लस माइनस 16m अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 16t अपॉन पाई डी क्यूब। तो अगर आप 16 अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन लेते हैं तो आपके पास m प्लस माइनस, okay, this is square, this is square, this is square, do not forget this, root of m square plus t square आ जाता है। And if you compare with sigma b, which is 32m upon pi d cube, नॉर्मल का नॉर्मल से ही कंपेयर करेंगे, so you realize that sigma principal stresses can be written as 32 upon pi d cube m, where m is nothing but m is equivalent bending moment, इसको equivalent कहते हैं। क्या आपने इतना, अगर आप टी और एम के साथ डील टुगेदर नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, टी को हटा दो और उसकी जगह इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट लगा दो, इट विल डू द सेम जॉब ऑफ क्रिएटिंग द सेम स्ट्रेसेस, राइट? इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू इट, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आपको सिंपल बना देगा ये। एट द एंड ऑफ द डे आपको गेट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्विकली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो एमओटी का, कंबाइंड लोडिंग। नेक्स्ट वुड बी टाउ मैक्स क्या होगा आपका? So tau max is root of sigma x minus sigma y by 2 a whole square plus tau square xy. सिग्मा x है आपका यहाँ पर 32m upon pi d cube होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस 16t अपॉन पाई डी। तो यहाँ पर 16 अपॉन पाई डी क्यूब बाहर ले लीजिए, रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर आप वर्सेस कंपेयर करेंगे टाउ, तो टाउ मैक्स क्या था आपका 16t अपॉन पाई डी, इसको लिख सकता हूँ मैं 16 अपॉन पाई डी क्यूब, where t is equivalent twisting moment। So this is a simple derivation, and I think this is all about combined loading. There can be other problems also, but this is in general. Okay? So just a minute, I'll be just take a 2-minute break, then we'll start the class. Okay?
Just a minute, guys. All right, so we have a problem over here. Standard problem A. This is an x-axis. This is an y-axis. Let's say this is a z-axis. And of course, this is fixed from here. Like that. And I'm applying a load like this. This is E. So determine value of, determine range of E so that it doesn't cause any tensile stress in the block. तो ये practical problem है. हम many times we don't want that there should be any tensile forces or tensile stresses induced in the member. Why? For example, concrete. Can anyone tell me what is the tensile strength of concrete? Any civil engineering student, if they are over here, because I am also not remembering this value. Do we have data of tensile strength? Don't know where is my mobile phone. Yeah, here it is. Can anyone tell me the value of of its compressive strength? Strength of concrete. मिल जाती है तो अच्छा. But whatever it is, its tensile strength is very less as compared to compressive strength. So there are members where we don't want any tensile forces. So we need to determine this range of P. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. So let us understand it like this. ठीक है, दो इफेक्ट होंगे यहाँ पर. देखो, पहला इफेक्ट तो ये होगा कि इसके कारण हर जगह कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो. एवरेज.
So this is P by A. Okay, and this is given to you as H. This data is given. And what about the other one? देखो ये P जो है इसको अगर आप शिफ्ट करोगे सेंटर पर, तो इसको अगर आप शिफ्ट करके देखोगे तो दिस वुड बी द सिनेरियो P एंड एक काम करो, विजुअलाइज करने से ज़्यादा आसान होगा आपके लिए कि मैं इसे इस तरह से बना दूं जैसा मैं करता आ रहा हूँ। एक पी बना दूं यहाँ पर, एक पी यहाँ बना दूं और एक पी यहाँ पर ऑलरेडी था। ठीक है फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट कॉपी इट। बहुत सारी कॉपी करना पड़ेगी इसकी मुझे। तो हुआ क्या, मैंने पी ऐड और सबट्रैक्ट किया है और अगर आप देखें तो मैं इन दोनों को हटाकर इन दोनों को एक कपल से रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब मैं इधर इसे हाईलाइट इन दोनों को हटाकर मैं एक कपल लगा सकता हूँ लाइक दिस। जिसका वैल्यू होगा P इंटू ई। तो एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए है, मुझे इसे काट के यहाँ लगा देना चाहिए। वो पहले आएगा, तो सीक्वेंस में करें क्वेश्चन सॉल्व। तो दिस इज योर फाइनल लोडिंग और इसमें P का इफेक्ट ये रहा ड्यू टू P और M का इफेक्ट अब आपको बनाना होगा, हमें बनाना होगा। M का इफेक्ट क्या होगा? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। So this guy will be tensile stress guy and this guy will be compressive stresses guy. तो आप बना सकते हैं यहाँ पर like this। मैं एक्सेस हटा देता हूँ सिंपलीफाई करने के लिए like this। So as I told you, here there will be tensile and here there will be compression. So this is due to M due to eccentric loading। ऐसे केसेस को हम eccentric loading कहते हैं। तो दिस इज जस्ट अ फ्लो डायग्राम, आप देख सकते हो कि ये लोडिंग था आपका P, इक्वल एंड अपोजिट ऐड किया हमने यहाँ पर। वी एडेड दिस फोर्सेस ओवर हियर, कैन बी कन्वर्टेड लाइक दिस, कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस एंड दिस कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, 1 and 2। अब हम टेंसाइल नहीं चाहते हैं, देखिए तो मैक्सिमम टेंसाइल कहां पर है? आउटर मोस्ट फाइबर पे। अगर मैं यहां पर टेंसाइल से बच गया तो मैं हर जगह बच जाऊंगा, करेक्ट। तो मैं P बाय यहाँ वैल्यू लिखूं मैं अगर मोमेंट की, तो मोमेंट कितना होगा मेरा, सॉरी स्ट्रेस कितनी होगी, My अपॉन I। M क्या है मेरा, थोड़ा स्पेस लगेगा इसके लिए, तो दिस इज लेट्स से सिग्मा T मैक्सिमम। तो सिग्मा T का वैल्यू होगा M is P into E, My
upon I पहले लिख देते हैं, P into E. What is Y? You see that this H, this is H, so this is H by 2. Okay. What is I? I is bending हो रहा है इस axis के about, so we'll take it about this axis only. So H cube into B into 12. So we have 6P E upon H square B, like this. And over here sigma compression is P by A, and we want P by A, but the A is BH. This guy must be greater than 6PE upon BH square. So यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा, तो B से B गया, H से H गया, P से P गया, कुछ भी नहीं बचा, H बचा, H बचा. So E6E upon H must be greater than 1. E must be less than H by 6. Just a moment. So this is what we have done the calculation. Okay. So this is the requirement that E must be less than H by 6. अब ध्यान से देखिएगा एक बात और, बहुत ध्यान से समझिएगा, रेंज निकालनी है आपको. तो एक मिनट के लिए अगर मैं इसको यहां ले चलूं, ठीक है, और इसका टॉप व्यू बनाऊं और आपको दिखाऊं, बोले तो ये है एक्स आपका, ये वाई आपका. ठीक है, नाउ दिस इज योर एच, और ये जो ई होना चाहिए एच बाय 6 से कम होना चाहिए. मतलब ये कि ई ये एच बाय 6 अगर मैं मान लूं, तो ई कैन हैव एनी वैल्यू लाइक दिस ओवर हियर. बड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं. यार ये लोड आपने यहां लगाया, कल से ये लोड, इसे अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, डिजिटल क्लासेस में एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि यू कैन अगेन एंड अगेन कॉपी पेस्ट सो दैट डिफरेंट डायग्राम्स यू कैन ड्रॉ. चलो उसका पूरा ही मजा ले लेते हैं फिर, अब जब करना ही है तो. मैं क्यों बना के दिखाया आपको, क्लास में तो एक में बनाना पड़ता है. ये पी है, अगर ये पी यहां लग रहा होता और ये ई होता, तो यहां पर फिर क्या आता आपका आंसर? कैन एनीवन टेल मी आंसर क्या आता? बी बाय 6 आता. अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा
कुछ छोटी सी गलती हुई है हमसे. E must be less than h/6. Just give me a minute. E must be less than h/6. Give me a minute, guys. h/, एक मिनट रुक जाओ. बस h/2 minus h/6 6h h/. नहीं, h/6 नहीं, it will be b/6, but एक कुछ गलती हो रही है हमसे यहाँ पर. There is one mistake we are doing, I believe. क्योंकि मुझे याद है ये मिडिल 1/3 रूल होता है, तो 1/3 क्यों नहीं आ रहा है? अभी मैं वो चेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. 1/3 आना चाहिए, 1/6 क्यों आ रहा है? This is h/2. मेरा जो आंसर आ रहा है वो h/3 आ रहा है. E must be less than h/6. Let's take a value of h6. It's equal to 6. Give me a moment, guys. 6 means this is 3. So E का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए. This is 1. E नहीं होना चाहिए. 1 से कम. Middle 1/3 will be on the both the sides of the center. For both sides it will come h/3 h/3. Yes, exactly. Yes, correct. यहाँ पर भी वही होगा, but उसे इंटरप्रीट कैसे करें? That's what I'm thinking. This is 1 by, ये वैल्यू फिर माइनस में चला जाएगा. For both sides it will come h/3 after addition. Okay, yeah. अच्छा, तो फिर ये गलत लिखा हुआ है मेरे से. ठीक है. Both sides it will come out be h/6. Correct, h/3. तो अगर ये h/6 है आपका, ठीक है. एंड लेट अस, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा b/6. अब आपका रेंज ये भी हो गया, ये भी हो गया, और फिर उसके अलावा जस्ट अपोजिट यहाँ आ जाएगा. ये तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा बना देता हूँ यहाँ पर.
ये h/6 सॉरी b/6 तो ये पूरा रेंज इधर और ये पूरा रेंज इधर, बेसिकली दिस रेंज। यहां पर आप कहीं पे भी लोड लगाओगे अगर इस रेंज में, so you will obtain that tensile stresses are zero. So this is what is called as the kern of section या core of the section. And this h/6 and h/6 is h/3. This is b/3. So this is sometimes also called as middle one-third rule, correct? So this is one example where you have an application of stresses, sorry, combined stresses कि किस तरह से आपको combined loading के साथ deal करना है. I hope this is clear. ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस कंबाइंड लोडिंग पार्ट. नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास कल नहीं है आपकी, है ना? नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे संडे. So let's see you on Saturday Sunday. Okay, and this week we are going to complete your strength of material syllabus. Any doubt, please ask. If you have any doubt, ask. Yes, बोलिए. बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं सर इस वेबसाइट पे. यार आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हो आप? सर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं सर 14 लेक्चर के बाद वेबसाइट पे. आप कौन कह रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? भूषण सर, भूषण. भूषण, यार एक्चुअली मैं ना रिकॉर्डिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं रहता ये मतलब कैसे मैं मतलब मैं अपलोड नहीं करता, तो मैनेजमेंट का कोई दूसरी टीम है जो इस चीज को करती है काम को, रिकॉर्डिंग को अपलोड करने का. तो कब से अवेलेबल नहीं है? एमएससी के बाद से शायद. अच्छा, तो आप ये क्वेरी एक बार आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर कौन है, क्या नाम है उनका? सम्यक आई थिंक, है ना? सम्यक, करेक्ट? यस सर. सम्यक को कहो कि वो एक बार मैनेजमेंट से बात करे. ओके. है ना? और अगर नहीं होता है तो मुझे बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है. शायद हो सकता है कि उन्होंने इसलिए बंद कर दिया हो क्योंकि एक बार उन्होंने पोस्ट किया था ना, शायद 10 सूर्यवंशी सर ने डाला था एक बार ग्रुप पे कि तो मुझे एक्चुअली में इसके अलावा और कुछ आइडिया होता नहीं है भूषण, ऑनेस्टली, कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो अवेलेबल, मतलब मेरे एक मेल पर आती है, वो मेल का आईडी है मेरे पास, ठीक है, बट शेयर वही लोग करते हैं, यूट्यूब पे भी वही लोग डालते हैं, पूरा मैनेजमेंट उसका वही लोग हैंडल करते हैं. ऐसा कह लो कि मेरे पास राइट्स नहीं है उस चीज को कहीं पर अपलोड करने के या किसी से शेयर करने के. But that is entirely your college property and college management will decide what has to be done with this. Okay, sir. है ना? So just ask once Suryavanshi sir or ask Samyak to talk to Suryavanshi sir कि why we are not getting those recordings. Maybe दो reason हो सकते हैं इसके. एक तो intentionally उन्होंने किया हो just to increase the attendance, और second reason would be कि शायद कुछ एक ब्रेक हो गया हो किसी कारण से, तो फिर वो अपलोड करना बंद कर दिया.
स्टूडेंट की तरफ से डिमांड नहीं आई होगी तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू अगर आप कहेंगे कि सर वी वांट रिकॉर्डिंग, देन आई थिंक मैनेजमेंट हैज टू लिसन टू यू एंड दे हैव टू अपलोड इट. ओके सर, थैंक यू. आप करिए. नहीं होता है तो एनी टाइम आई एम देयर, whichever way I am there, मतलब कैसे भी करके मैं I'll make sure कि वो हो जाए, है ना, अगर मैनेजमेंट एग्री करता है तो. ठीक है. यस सर. तो अगर नहीं होता है तो जस्ट कीप मी अपडेटेड कि सर ये प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है. ओके सर. हाँ. एनीथिंग एल्स? नो. तो भूषण ग्रुप पे पोस्ट कर दो एक बार तो कि सर रिकॉर्डिंग अब नहीं हो रही है, और बाकी सम्यक को बोल दो. आई थिंक बोथ द वेज थिंग्स विल वर्क आउट. ओके. और एक बार मैं भी सूर्यवंशी सर को मैसेज करता हूँ. मैं भी उन्हें मैसेज करता हूँ कि सर स्टूडेंट